Hello dear students, good morning. Hope you all are doing well. Children, in today's class we're gonna study the second unit poem The Kite from class 6 English NCERT reader book Honeysuckle. Children, here is the picture of an object and it is used to be the favorite activity of yours also. Yes, these are the flying kites, and some children really consider it as a fun activity and as a game also. So everyone loves to fly kites, correct? What is the meaning of kite? Kite means patang. I'm sure that you all are aware of this word, the kite, and you also might have tried to fly the kites in your life sometimes, correct? So through this poem, the poet has drawn a beautiful picture of the flying kite through words, and the composer of the poem is Harry Ben. Children, we all love to see flying kites but never notice that how it flies, correct? But through this beautiful word picture of a flying kite, the poet is just persuading us to fly one and notice its beautiful moves. So without wasting time, let's get into the reading of the poem and try to enjoy the poem and understand that what the poet is trying to convey us. Okay? All of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? Read this poem about a kite as it flies in the sky. हम सब को पतंग उड़ाना पसंद है. क्या आपने कभी भी कोई पतंग उड़ाई है? इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि जब पतंग आसमान में उड़ती है तो वो कैसी लगती है. Now how bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and dip, it snaps its tail. Underline the difficult words. Okay. Then soars like a ship with only a sail. Now here in the first stanza, first let me tell you the meaning of these words. Here the word blue has been used to show the sky. Blue means sky. Blue color is the sky color. Okay, it is supposed to be the sky color. So that's why the poet has used this word blue. And here dive and dip. You must have heard this word before. Dive. Dive means to go into water with a force and softness together, but here the word dive and dip has been used for the kites to go into the sky, not in the water. Okay, dive and dip जैसे कि गोते लगाना, ऊपर उठना, अंदर की तरफ जाना. Snaps here means the cracking sound. फटफट की आवाज आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? Snaps. Okay, and sail means बहना पानी में. So now the meaning is cleared that in the first stanza, the poet wants to say that a kite looks bright on a clear sky when it flies for the first time. And it moves with softness and force together at the same time. To fly makes its tail to create a cracking sound in the air. Here is the tail, you can see, and now you can imagine yourself the time when you fly a kite in the sky. जब आप खुद पतंग उड़ाते हैं तो आप उस बारे में सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि आपकी जो फीलिंग्स होती हैं उस काइट को देख के क्या होती हैं. वो जो काइट होती है पतंग हवा में जब न्यू होती है, जब बिल्कुल नई पतंग होती है, तो किस तरह से बिल्कुल चमकते हुए क्लियर आसमान में, बिल्कुल खुले आसमान में, ब्लू आसमान में उड़ती हुई चली जाती है. और हवा के साथ साथ वो कभी डाइव करती है तो कभी डिप करती है, विच मीन्स कभी वो ऊपर की तरफ जाती है या कभी वो नीचे की तरफ चली आती है. इट स्नैप्स इट्स टेल, और इसी की वजह से, इस हवा के झोंके की वजह से उसकी जो ये टेल है वो क्या होती है? हिलती जाती है, मूव करती जाती है, और इसकी मूवमेंट की वजह से स्नैप यानी कि क्रैकिंग साउंड होता है और फड़फड़ाने की आवाज़ आती है उससे. और ऐसा लगता है कि जैसे पानी का जो जहाज़ होता है, लाइक शिप और बोट, जो भी कश्तियाँ होती हैं, उनमें जो पाल लगे हुए होते हैं इस तरह के, यू मस्ट हैव सीन,
कि जिसकी वजह से वो सेल करती हुई पानी पे आगे बढ़ती चली जाती हैं। उसी तरह से ये जो पतंगे हैं, ये जो काइट्स हैं, वो खुले आसमान में आगे की तरफ बहती हुई जा रही हैं। सेल मीन्स बहना। नाउ लेट्स सी द सेकेंड स्टैंजा, व्हाट द पोएट सेज हियर। एज ओवर टाइड्स of wind it rides. Underline the words such as climbs to the crest of gust and pulls, then seems to rest as wind falls. Now here the word tide means rising and falling waves. जब भी waves आती हैं, लहरें जो आती हैं, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आगे कुछ सफ़ेद बिल्कुल वाइट कलर का झाग बनाती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा इन हिंदी, और इंग्लिश में इसे टाइड्स बोलते हैं। ओके, राइड्स मीन्स आगे की तरफ बढ़ना, मूवमेंट, एंड क्लाइंब मीन्स चढ़ना। ओके, एंड क्रेस्ट मीन्स माउंटेन टॉप। ओके, और ए टफ्ट ऑफ फेदर्स ऑन द हेड ऑफ ए बर्ड और एन एनिमल। सो नाउ in the second stanza, the poet says that such moves, okay, like heading forward with the wind, the poet says that such movements helps it to float in the sky, just waves rising and falling with the sudden blow of the winds, like hawa ke jhonke ke sath. It goes up to the highest point in the sky in a wavy manner, just like the way a ship moves on the ocean, but as soon as the wind slows down, it seems as if it has stopped there to rest. तो बिल्कुल ही इसकी जो कंपैरिजन है उसको बोट के साथ किया गया है यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा में, कि जितने भी मूवमेंट्स होते हैं पानी में, वेव्स में, तो उसकी वजह से जो शिप होती है वो आगे की तरफ, कभी ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, फिर नीचे की तरफ आती है। उसी तरह से हवा के झोंके की वजह से ये जो पतंगे हैं वो बिल्कुल कभी ऊपर की तरफ राइज कर रही हैं, मीन्स टाइड्स की तरह आगे बढ़ रही हैं, राइज कर रही हैं, और उसके बाद वो कभी एकदम ऊंचाई पे चली जा रही है, माउंटेन टॉप की ऊंचाई पे चली जा रही है, बहुत तेज़ी के साथ ऊपर बढ़ जा रही हैं, और कभी वो फिर नीचे आ जा रही है। यानी कि जब जो पतंग उड़ा रहा होता है उसे ये अच्छे से पता होगा कि जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पतंग पहुंच जाती है, काइट पहुंच जाती है, तो वो क्या होता है, वो जो पतंग उड़ा रहा होता है वो अपनी, उसका जो स्ट्रिंग होता है, जो उसकी टेल होती है, स्ट्रिंग जो उसका होता है, उसकी डोरी जो होती है, वो उसको थोड़ा और लूज़ कर देता है ताकि वो आगे बढ़ जाए। ओके, और उसके बाद कभी जब वो बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाती है, कभी वो बहुत नीचे आ जाती है, और जब हवा के झोंके जब रुक जाते हैं किसी तरह से, जब ब्रीज, जो भी हवा चल रही होती है, जब वो रुक जाती है, तो ये जो काइट्स होती हैं दोबारा से वापस आके स्लो डाउन हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं, और फिर ग्राउंड पे आ जाती हैं, और ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुक गई हों। ओके, नाउ लेट्स गो टू द थर्ड स्टैंजा। He says, when a string goes slack, you wind it back and run until new breeze blows and its wings fill and up it goes. Underline such words, slack. Slack means to get loosen. Okay, लूज हो जाना, ढीला पड़ जाना। विंड मीन्स हवा, एयर। ब्रीज मीन्स फ्रेश एयर, जो ठंडी हवा चलती है उसे हम ब्रीज बोलते हैं। विंग्स मीन्स फेदर्स ऑफ पंख। ओके, so now in the third stanza, the poet says that when the thread tied to the kite loosens and the flyer runs and rolls it back, and he waits till a new breeze blows again and fill its wings with air again to help it fly high. So as I told you just now कि इस चीज़ को जो फ्लाई करता है, काइट्स को जो पतंग उड़ाता है, वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। यहाँ पे जो पोइट ने बताया है कि जैसे ही उस पतंग में जो कॉर्ड लगी होती है, उस काइट में जो स्ट्रिंग लगी होती है, डोरी लगी होती है, जब वो लूज़ हो जाती है, तो वो जो पतंग उड़ाने वाला फ्लायर होता है वो उसके पास जल्दी जल्दी से दौड़ के जाता है और उस स्ट्रिंग को दोबारा से अपने रोलिंग पिन पे जो भी परिधि होती है उसमें दोबारा से उस थ्रेड को बांध लेता है, और फिर वो नई हवा के चलने का इंतज़ार करता है। मीन्स दोबारा से वो सोचता है कि हवा के झोंके आए और उसके उस काइट को, उसकी पतंग को वो पंख दे सके, फेदर्स दे सके, और वो हवा में ऊपर की तरफ दोबारा से उड़ने लगे, जैसे कि
बर्ड्स, उनके पास फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, और उनके वजह से वो आसमान में उड़ पाती हैं। उसी तरह से यहाँ पे पोइट ने बताया है कि जो फ्लायर होता है, जो पतंग उड़ाता है, वो ये चाहता है कि हवा चले, और इसी हवा के वजह से ये जो एयर होती हैं, ब्रीजेज़ होती हैं, इनके वजह से जो काइट्स होती हैं उनको विंग्स मिल जाते हैं, उनको पंख मिल जाते हैं। तो ये वही चाहता है, विश करता है कि हवा चले और उसकी काइट्स को दोबारा से विंग्स मिल जाएं और वो हवा में ऊपर की तरफ आसमान में उड़ सके। See the fourth stanza, how bright on the blue is a kite when it's new. Here the lines are repeating, okay, but a raggeder thing you never will see when it flaps on a string and when the top of a tree, okay. So in the last stanza, the poet says that a kite, again he is saying that a kite looks very bright and beautiful on a clear sky, but when it gets struck on a treetop, it gets torn and gives a very poor look, very poor worn out look, and which is not liked by anyone. सो लास्ट स्टैंजा में भी पोइट का कहना है कि जब हवा में पतंग उड़ती रहती है खुले आसमान में और साफ बिल्कुल क्लियर स्काई में, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लगती है, बहुत ही ज़्यादा चमकती है, ब्यूटीफुल लगती है, बहुत प्यारी लगती है। लेकिन जब कभी भी ये जो पतंग होती है, जो काइट्स होती हैं, किसी ट्री टॉप में जाके लड़ जाती हैं या उसमें फंस जाती हैं, टैकल हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है इनके साथ, ये टॉन हो जाती हैं, ये फट जाती हैं। ये इंसिडेंट आपके साथ भी बहुत होता है। बहुत बारी हुआ होगा कि आपकी जो काइट्स होगी वो पेड़ों में जाके फंस गई होगी, आप उसके स्ट्रिंग्स जो होंगे उस पर फंस गए होंगे, एंटेंगल्ड हो गए होंगे, उसके बाद आप उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे होगे, लेकिन ऐसा करने में क्या होता है कि वो जो काइट्स होती हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से फट जाती है, उसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल पुअर हो जाती है, और इस तरह की फटी हुई जो काइट्स होती हैं, पतंग होती है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती किसी को। स्पेशली जो फ्लायर होता है, वो जो पतंग उड़ा रहा होता है, उसका तो दिल ही टूट जाता है ऐसी कंडीशन वाली काइट्स को देख के। सो आई होप दैट यू हैव enjoyed this poem and understood everything. Okay, so I'll see you in next video. Till then, take care. Thank you.